start this session. So, Namaskar, I am Sapna Khandelwal. Guess my words. I'm Author of Shakti. author of Amazon bestseller Unleash the Shakti Within, creator of India Sari Challenge Facebook group, co-founder of देवदीति फाउंडेशन. देवदीति फाउंडेशन के तहत ये सीरीज चल रही है ऑन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. जब ये सारी दुनिया लॉकडाउन के माहौल में परेशान और त्रस्त थी, Devditi started our journey of transformation, and this is our 32nd or the 33rd session, 32nd in this. So it's pretty huge what we've been able to do, and that is entirely because आप लोग हर वक्त हमेशा हमारे साथ हैं. आप लोगों की वजह से देवदीति बन सकी है जो आज देवदीति है. कोर ग्रुप की वजह से, एग्जीक्यूटिव्स की वजह से और आप सब मेंबर्स की वजह से देवदीति ने वो आयाम, वो मुकाम पाया है. और आज उसी कड़ी में हम जोड़ रहे हैं बहुत खूबसूरत शख्सियत जो देवदीति के बहुत करीब है और देवदीति उनके बहुत करीब है. और जब देवदीति का इंसेप्शन हुआ था ना, तभी से ये जुड़ी हुई हैं. So she has seen Devditi as a literally in the embryo stage. She's been associated, and she is a beautiful lady, a very wise. She counsels. She's in psychology. And let me not take up too much of your time. Let me call the co-hostess, Vandana Gupta, co-founder, the dynamic co-founder of Devditi Foundation. She welcome Gunjan. Namaskar. So we are back again with another session with Gunjan, and as Bhabi just put it, she's been associated with us for a long now. So what we are talking about today is the coronavirus, the pandemic. Everybody is worried, anxious, fear, और हम सब इससे लड़ रहे हैं. और इस लड़ाई को कौन जीतेगा? जो इन सब चीजों को टैकल कर पाएगा. तो Gunjan today will tell us the way we can tackle all these problems. Gunjan Bijlani, she is a counselor, and Gunjan is a very good friend of mine. And as we had put it, she's a very well associated with Devditi. मेरे को ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जब हमारा फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम हुआ था साड़ी सागा in 2015, that time Gunjan was one of the MCs, and scripting में she had played a major role with Amisha and Abhaji. So जो हमारा प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ तो उसका श्रेय गुंजन को भी जाता है. And then she's a mother of two sweet girls, successful in their fields, and she runs a Montessori school. Then she helps counseling in relationships. Then she, and basically क्या कहना चाहिए, सबसे ज़्यादा ये child and adolescence में इसकी expertise है, where she is even managing the parenting part. Am I right, Gunjan? Yes. Yeah. So she's done her master's from where? I forgot the university name. I did my master's in psychology. I have a distinction in that from IGNOU because I studied very late in life. So I did it from distance learning. And now I did a course on REBT therapy from Albert Ellis University in USA. Yes. I'm also a counseling psychologist, family therapist with Sitaram Bhartiya Hospital. Yeah. So I give the mic to Gunjan now to take the session forward. क्योंकि यही सब बताएगी, हमें तो पता नहीं कैसे fear को handle करना है. Over to you, Gunjan. Yeah. So namaskar everyone, and good evening to all of you. And I thank you. A lot of people having phobia and having a lot of restlessness regarding this COVID uncertainty. Now this is something we don't have a choice. I mean, honestly, nobody taught us how to deal with this. बचपन में किसी को देखा नहीं, किसी ने बताया नहीं, माँ बाप ने कभी बताया नहीं कि ऐसी सिचुएशन आती है, लाइफ में कैसे हैंडल कर रहा है. आई थिंक हम सब डील ही कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड ही डील कर रहा है. सो वी आर काइंड ऑफ इन इट. या नाउ व्हाट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इज, राइट नाउ जो आपके इमोशंस आपको कह रहे हैं ना, उनको सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि इस समय हमारी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है. हम लोग एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन से गुजर रहे हैं. तो इस समय अपने इमोशंस को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के देखिए, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिफाई करिए अपने इमोशंस को, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे अपने इमोशन से, देन यू विल मोस्टली मेक इलॉजिकल डिसीजंस.
and which you're going to regret later. So one thing you need to be, and ask yourself one thing, have I dealt, क्या मैंने लाइफ में पहले अनसर्टेनिटी और स्ट्रगल देखा है? आई एम श्योर हम सब ने देखा है, राइट? शादीशुदा है ना हम सब, तो आई थिंक स्ट्रगल एंड अनसर्टेनिटी एंड लाइफ में डिफिकल्टीज हम सब ने देखी हुई हैं. क्या मैंने पहले उनके साथ डील किया है? क्या मैंने लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस या थ्रेट को पहले एनकाउंटर किया है लाइफ में? क्या मैं उसको अच्छे से डील कर पाई थी? क्या मैं उसमें से उभर पाई थी? तो इस बार भी मैं उभरूंगी. दिस इज व्हाट यू नीड टू टेल योरसेल्फ, दैट देयर इज नथिंग. अगर खुशी नहीं रुकी तो ये भी नहीं रुकेगा. एंड दिस इज वन थिंग आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट. I have done it before and I will do it again, and I will do it whenever it is needed to be done. I need to tolerate this discomfort. I need to tolerate this uncertainty, and I will not break down right now, because if I'm able to tolerate it, it is going to be worth it for me, right? If I'm able to keep myself together right now and make sense out of my life, तो ये मेरे लिए worth it होगा. मैं अपने आप को एक intact रख के इसमें से निकल पाऊंगी. दूसरा, आपको ये समझना है कि हम मैमल्स हैं. यू नो व्हाट आर मैमल्स? वी आर द स्पीशीज ऑफ मैमल्स. एंड जितने भी ह्यूमन स्पीशीज थे, उन सबसे आगे जो बड़ा वो होमो सेपियंस था, जो हमारी स्पीशीज है, क्योंकि हम लोग कम्युनिटी में रहने लग गए थे. हम लोग सोशल एनिमल्स हैं. तो इस समय जो है हम लोग सोशली डिस्कनेक्ट हो गए हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, झपिया नहीं पा रहे हैं, एंड एक दूसरे को फिजिकली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. वॉक भी करना है दूर दूर से, शॉपिंग भी करनी है दूर दूर से. तो ये चीज हमारे लिए नहीं है, और हमारी कोपिंग मैकेनिज्म के लिए ये चीज बहुत ही नहीं है. तो अगर आपको इसमें डिफिकल्टी आ रही है, इट्स नथिंग ग्रेट. ये है, ये हमारे डीएनए में है. वी वांट टू बी कनेक्टेड. लकीली वी हैव फोरम्स लाइक Zoom, जहाँ पे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की तकलीफ को महसूस कर पा रहे हैं. यू नो, तो इतना फील नहीं हुआ. टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली हेल्पिंग अस टू गेट थ्रू दिस. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग एनी एक्स एंड पेन्स. सो बी वेरी अट्यून विथ योर बॉडी. अपनी बॉडी के साथ थोड़ा सा अट्यूनमेंट रखिए. आपको कहीं पे दर्द, क्योंकि साइकोसोमैटिक पेन्स बोलते हैं हम इनको, जो साइकोलॉजिकल होते हैं. सो थोड़े से अट्यूनमेंट में अगर आप रहिए, आपको कहाँ दर्द एक वगैरह हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर ये बढ़ जाएगा एंड देन यू विल गेट यूज्ड टू लिविंग विद द पेन. सो जस्ट बी लिटिल केयरफुल. Express yourself, talk, you know, tell people how you feel, and the people you love, tell them you love them, you know, because these times are difficult right now. We need to hear that more from each other. And practice a lot of self-care. Please be selfish. Please be selfish. आपको पता है हवाई जहाज में क्या कहते हैं? पहले ऑक्सीजन मास्क अपने आप को लगाइए, फिर दूसरे की मदद करिए. आपके घर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, पहले ऑक्सीजन मास्क आप खुद को लगाएंगी. जो आपके लिए जरूरी है वो आप करेंगे. सब अपना अपना ख्याल रखेंगे, आप अपना रखिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स सेल्फ एम्पैथी. एंड इफ यू मेक अ मिस्टेक, इफ यू मेक अ goof up, टेल योरसेल्फ, आई एम अ फैलेबल ह्यूमन बीइंग. गलतियां करूंगी यार, इंसान हूं. Forgive yourself and move on forward. When you learn to forgive yourself, जब आप अपने आप को माफ करना सीख जाते हो, जिंदगी में आगे बढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है. वरना अगर आप गिल्ट ट्रिप पे चले गए और शेम और गिल्ट में अगर आप उलझे रहे, तो वो नेगेटिव अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस में आप उलझी रहेंगी, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है. सो किक योरसेल्फ, से फाइन, आई मेस्ड अप, आई मेड अ मिस्टेक, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई विल मेक मिस्टेक्स, एंड देन गो फर्दर. या, any questions? We can start. Anybody has any questions related to this? Give me a second. Yeah, sure. Are you done with your session, Gunjan, or you want to say something more? No, she is not done. She's asking if anybody has a question. Renu ji had one. Yeah. Okay. Acha, okay, I saw your hand raising. Okay, you carry on, Gunjan. Okay. So, does anybody have a personal question, a personal, adversity that you are facing? कुछ difficulty अगर आपको लग रहा है, जो genuine आपके लिए, जो आपकी personal है, COVID related हो, वैसे भी life related हो, you can please ask. Okay, basically you want us to open up the question answer session. Yeah, 1 second. Yeah. Yeah. Anyone wants to ask? All right, Srajna.
Yeah. I See, will- I had a question, Gunjan. I'm living here alone with my husband. My kids are not with me. They're in the US. So Okay. at times I you know what I feel at times I get a feeling पता नहीं कभी उनसे मैं मिल पाऊंगी नहीं मिल पाऊंगी पता नहीं मेरे बच्चे कभी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे. And you know when I get that kind of feeling I get sleepless nights after that. So it's Yeah. more like, you know, it's like, should I be going out? Will I get infected? So all those things, a lot of these kind of questions keep popping up, and I don't know how to handle that. Yeah, absolutely. So there is uncertainty in your mind, right? Now, so Sarjana, right? Right. Srajna. Srajna. Srajna, you need to ask yourself, can we get 100% certainty in life? First of all, can we get that? Is it possible to have 100% certainty? Mm-hmm. Right? We Right. don't. Any situation will not give you uncertainty. So you need to ask yourself, what is the probability and the certainty? So keep the 100% certainty aside, understanding that this is not possible in any situation. Now, what you're getting into is a state of anxiety. Anxiety is very unhealthy negative emotion. इस समय आपके बच्चे आपसे दूर हैं तो मैं कोई भी आपको ये बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होता, that's funny, that's silly. It doesn't work like that. You're a mother, Right. you're concerned, right? Now, instead of feeling anxious, how about being concerned? It's a healthy negative emotion. तो आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखिए इमोशन, नेगेटिव इमोशन भी जरूरी होता है. कोई मुझे डांटेगा या गाली देगा तो आई वोंट बी ओके विथ इट, but I should be disappointed, I should be concerned other than being anxious and anger. Anxiety में क्या होगा, आप एक स्पाइरल में चली जाएंगी और स्पाइरल में जाने से आप रूमिनेट करेंगी उन्हीं थॉट्स को, दोबारा आपके दिमाग में वो चलते रहेंगे ऑन अ लूप. अच्छा, उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी. आप सडनली आप नींद से भी उठेंगी तो आपको लगेगा मैं बहुत थकी हुई हूँ, यू नो. Exactly. Right. When you're tired, what do you do when you're tired? You want to just lie down further. So what actually happened is your thoughts did that to you. जो आप सोच रही थी बार बार, वो जो लूप पे जा रहे थे, वो एक अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन आपने अपने दिमाग में ले लिया. नाउ हम सबको एक चीज समझनी होगी, अनहेल्दी नेगेटिव इमोशंस के साथ हमारी अटैचमेंट है बड़ी प्यारी बचपन से, पता नहीं क्यों. हम फटाफट हर्ट, डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी जहां मिलते हैं हम उनको चिपक जाते हैं फटाफट, यू नो. तो ये हमारे डिफॉल्ट सेटिंग में है. सो टू अंडरस्टैंड कि जब आप अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस कर रही हैं, दे आर एनर्जी ड्रेनर्स. आपकी एनर्जी सैप हो जाएगी. जब एनर्जी सैप हो जाएगी तो आप लॉजिकली किसी भी सिचुएशन को आगे नहीं ले पाएंगी. आप इसमें से आप लॉजिकली सोच सकती हैं, आप बच्चों को कॉल करके सेफ्टी मेजर्स बता सकती हैं कि आप ऐसे खाओ, ऐसे रहो. बिकॉज जब आप कंसर्न रहेंगी तो आप एक लॉजिकल स्टेप लेंगे उस तरफ. Right. आप लॉजिकली उस चीज को डील करेंगे. फाइन, प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे इस प्रॉब्लम से अपने बच्चों को हेल्प करना है. ये अगले 2 महीने, अगले 3 महीने अगर हमने निकाल लिए अच्छे से, देन थिंग्स विल बी फाइन. तो मुझे अपने बच्चों को, बट इमेजिन करिए अगर आप उठ रही हैं थकी हुई और आपसे उठा नहीं जा रहा, खाना नहीं खाया जा रहा, व्हाट विल हैपन? You're not sleeping, your appetite will drop. What will happen? You will fall sick yourself. Then can you help anybody else? No. So you have to do a automatic thought correction. Ask yourself, am I being... जब भी आपको एनर्जी लगे ना नहीं है बॉडी में, इतना बोलो कि इससे पहले मैं सोच क्या रही थी. जरूर कोई अनहेल्दी नेगेटिव थॉट होएगा मेरे अंदर, उसको पकड़ो और उसको ऑल्टर कर दो कि एंजाइटी की जगह मुझे कंसर्न, यू नो, वरी, आई शुड टेक कॉशन. कॉशन इज नेगेटिव, हेल्दी नेगेटिव, बट अनहेल्दी नेगेटिव में नहीं जाना है. ये एक डिस्टिंक्शन अपने दिमाग में बनाना होगा. जब एनर्जी कम हो जाती है ना, उसी समय दैट्स अ पैरामीटर फॉर यू टू चेक कि यू नो, ओके, आई वाज थिंकिंग समथिंग, आई नीड टू चेक व्हाट वाज आई थिंकिंग. मेक योर ओन थॉट करेक्शन एंड मूव फर्दर. All right. Thank you, Gunjan. Thank you so much. I hope that helped. Of course, I'm sure it will. Yeah, Sajda, thank you for your question. Gunjan, Anjali is asking something. I'm unmuting her. She's also typed on the chat box. Yeah. Anjali, Anjali, Yeah. you can ask your question. Yeah. Hi, Gunjan. Hi, Anjali. I have known Gunjan since last 25 years, and she has been counseling me since last 25 years only. So I have a question.
what are the major reasons for a conflict between a husband and a wife? Major reason for husband and wife conflict. It's a Tom and Jerry show. Watch it every day. Okay. So on a serious note, husband और wife में अनबन क्यों होती है? मेरे पास जितने couple आते हैं, okay, बहुत interesting है. Extra marital affairs जब होते हैं ना, तो जब आप husband से पूछो या wife से पूछो, they always say he understands me better. मेरा husband मुझे नहीं understand करता. That man understands me better. What is it about understanding? Understand कुछ नहीं है. शादी करेगी सेम सर्कस उधर भी शुरू होने वाली है. So it's not going to make a difference as such. But please understand, it's about acceptance. Husband and wife में problem ये होती है वो एक दूसरे को change कर रहे होते हैं. ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे. जब आप दूसरे को change करते हो ना, इसका मतलब आप उसको accept नहीं कर रहे हो. And everybody, सबकी लड़ाई acceptance की है. मैं जैसा हूँ, you know, lots of time you hear people say, मैं तो ऐसा ही हूँ. Lots of the time women also say, no, मैं तो ऐसी ही हूँ. But what about him? उसको भी accept करो ना. What about her? उसको भी accept करो. It's about accepting. When you don't accept somebody, when you try to change that person, you are communicating that I don't love you. When you also do it with your children also. When you try to change them, बच्चे भी irritate तब होते हैं जब आप उनको बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे. So basic acceptance in the relationship, accepting the person and then communicating. Communicating in a very logical way that, you know what, when you do this, it kind of hurts me, or when you do this, it kind of does not go very well with me. Can you help me by altering your behavior? You think you can do this for me? You know, it'll really work. But we are constantly making a change in the other person. वो बंदे को पूरा change कर दो अपने हिसाब से, फिर कहो कि तुम तो बदल गए हो. Yeah. So, Chalo, thank you. Gunjan, may I add one line in this? please do, yeah. Yeah, basically it's that what you very rightly said, the constant want of trying to change that person, it goes in our body language, it goes in our bhav, hamara total behavior. Absolutely. And that goes to the other person much more than our words. So we have to first work on that, our own body, Absolutely. our own words, our own behavior, and Absolutely. then try and get that harmony in a relationship. Thank you. सपना जी, you're absolutely right. हम हमेशा दूसरे को बदल रहे हैं, बट हमें ये समझना है कि हम सिर्फ एक ही इंसान को बदल सकते हैं, वो है अपने आप को. हम किसी को नहीं बदल सकते. You have to only change yourself, your response, your body language, and then the domino effect will start. But no, चोट मुझे लगी है, bandit तुम लगाओ. It doesn't work like that. Absolutely, like that Sharabi movie. You know, he's just going on putting bandit after bandit on that mirror image. That's what on the mirror. Exactly. चोट मुझे लगी है, लेकिन डेटॉल मैं वहां लगाऊंगी. दर्द मुझे हो रहा है, लेकिन तुम ठीक से बैठो. You know, this is well said. Thank you, Anjali. I'm going to unmute Ashima. She has a question, and her hand has been up for a long time. Ashima, just give me a second. Ashima. I am there. I am there. Anji, bolo, Ashima. Anji, hello Gunjan. I have a question regarding my husband. Yeah, regarding your husband. Okay. Yes, actually, in these days, sometimes he feels insecure regarding the economic condition. Yes. Rather than actually, we have very good business in these days also because we are related to insurance. But still, sometimes he worried about these things that economically what will be the scenario and what will be the future. Then what type of tacklement he needs? Okay. So what happens is, it's an attitude. It's a mental attitude. Yeah. If in my mind I have fixed an attitude that I must reach here, so whenever there is a must and there is a demand in your head, right, you're setting yourself up for anxiety. Make that for sure. You have to be flexible in your attitude. You know, I would prefer that my turnover is this much this year, but unfortunately, if it is not, I can handle it. I will be able to deal with it. So when there is a rigid, okay, for example, if I say कि मेरे पर्स में हर वक्त 1000 रुपए होने चाहिए, okay, maybe 1000 is too less, 5000. But अगर 5000 से कम हो जाएगा तो मैं बहुत ही रेस्टलेस हो जाऊंगी. You will see people doing silly things when they are anxious. तो अगर मेरी जेब में 4500 है तो मेरी रेस्टलेसनेस कि वो 5000 नहीं है, 5000 नहीं है, 5000 है
तो सारा एंजाइटी क्या होगी कि अगर 200 भी खर्च हो गए तो मैं 5000 से कम पे आ जाऊंगी. हाउएवर अगर मेरे पास 5000 और 200 एक्स्ट्रा आ गए तो भी मैं ये एंजाइटी बिल्ड कर दूंगी कि ये 200 अगर चले गए, अगर इसमें से 300 निकल गए तो मैं वापस 4800 पे आ जाऊंगी. तो इट्स एन एटीट्यूड इन द माइंड. आपने माइंड में एक फिक्स कर लिया है कि मुझे यहाँ मस्ट, इट्स अ मस्ट. जहां पे भी आप एक मस्ट बनाते हो, एक डिमांड बनाते हो, लाइफ को जितना फ्लेक्सिबल रखेंगे आप, उतना आपको इजी रहेगा. इट विल बी इट विल बी हेल्दी फॉर यू. Anytime whenever there's a must, so your husband definitely is dealing with a must, with a rigid thought. Yes. There is some rigidity that he has put in his mind, and now that is shifting, which is making him anxious. But tell him what, this is what life is. Life is going to shift. The only thing that is constant is change. It will change. We are up, we will go down, we will go up again, we will go down. We will not stay down forever, we will not stay up forever. But we So are not this is down how in it is these going to be. days So he needs to also. be flexible. Then it's his rigid attitude that Yes. see, even when you're not down, अगर मेरी जेब में 5000 है तो भी मैंने एंजाइटी बिल्ड कर ली है कि अगर 200 कहीं खर्च हो गए तो. But luckily, we have such type of business that we are going up instead of going down. We are going up in these days. Okay. Then, what can I do now? Then he has rigidity in his mind. He needs to be flexible over there. And is he functional or is he dysfunctional? Is he behaving? I mean, is he running into some pains or is he running into some kind of behavior disorders? घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, then have you heard He one is thing? feeling bad in his mind. Yeah, but have you heard one thing? चिंता चित्ता के समान. Yes. Yeah. So okay. So that is why how to get rid of it. Yeah. So can I take 2 minutes to explain what चिंता does to you? Go ahead. Yeah. Okay. So when you are anxious, right? हमारा ब्रेन जो है ना वो प्रिमिटिव है. और प्रिमिटिव ब्रेन जो है, जब हम आदिवासी थे तो हमारा डीएनए, पहले हम जंगलों में रहते थे ना, मतलब we were hunter gatherers, so we are the same DNA that is now living in cities. But whenever there is stress, हमारा ब्रेन उसको स्ट्रेस नहीं रीड करता, हमारा ब्रेन उसको रीड करता है कि सामने शेर खड़ा है. fear. Always our brain reads it as fear. इस समय I have to go in fight and flight movement. Is it getting too complicated? No, it's fine. No. Okay. जब आपके सामने शेर खड़ा होता है, या तो आप भागोगे या तो आप लड़ोगे, दो ही चीजें कर सकते हो, राइट? उसके लिए आपका ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है, कॉर्टिजोल. Cortisol is nothing but a poisonous chemical, but it immediately releases glucose in your body, and your arms and your legs have too much energy. जो आप गुस्से में रियलाइज करोगे कि आपके हाथ और आपके टांगों में बहुत एनर्जी आ जाती है. सडनली लोग चीजें फेंकते हैं, लोग मारते हैं, लोग कुछ करते हैं, because there is too much energy in their limbs. When the blood rushes into your limbs, it goes away from your body, from your viscera, the organs. क्योंकि इस समय भागना है या लड़ना है, दो ही हमारे पास ऑप्शंस हैं. तो जब ब्लड वहां है तो ब्लड यहाँ नहीं है. जब ब्लड यहाँ नहीं होता, इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे स्लो होती जाएगी. अभी इस समय इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है, इस समय मुझे शेर से बचना है. अब हमारा ब्रेन जो है उसको ये नहीं पता कि ये शेर नहीं है, ये मेरी ऑफिस की डेडलाइन है. ये शेर नहीं है, ये मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ. ये शेर नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया है. ये शेर नहीं है, लेकिन मेरी मेड सर्वेंट काम पे नहीं आई है. आपको पता है हम कितनी कितनी चीजों की एंजाइटी बना लेते हैं अपने सर पे. लेकिन हर बारी जब आप एंजाइटी बनाते हो, आप फियर अपने दिमाग में डालते हो, तो आपका ब्रेन ये सोचता है सामने शेर खड़ा है. कॉर्टिजोल रिलीज करो, ग्लूकोज रिलीज करो, आपका पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेंगे. हेंस व्हाट विल हैपन? डायबिटीज, heart disease and other kind of comorbidities that will hit you. So anxiety करिए, गुस्सा करिए, उसकी एक कीमत है, वो कीमत भी आप ही चुकाएंगे. तो या तो उनको ऐसे समझाइए कि आप कर लीजिए एंजाइटी, बट इसके लिए ये फ्री में नहीं आती ना. एंजाइटी और स्ट्रेस फ्री में नहीं आता, इसके पैसे लगते हैं, मतलब अपनी हेल्थ देनी पड़ती है. अगर वो देनी है तो करिए, फिर गिनिए फिर अपने. या आशिमा, did it help? Yeah, it will help, but ये सारी टेक्निक्स मैं अपना चुकी हूँ. Sorry? ये सारी टेक्निक्स मैं अपना चुकी हूँ. No. आशिमा, फिर चॉइस उनका है, आप इससे ज्यादा नहीं कर सकती. Absolutely. I was about to say It is that. his choice. He's not a child. He's not a child. You have given him. Tell him this is what you're doing. Please go ahead and do it. It's up to you. Then we will be going to the doctors and we'll be taking medicines. Then please go ahead.
Okay, That's- thank you so much. That's a choice he has to make. If he wants to choose anxiety over tabiat, then it's his choice. Thank you for your question, Okay, Ashima. thank you, Gunjan. Thank you, Ashima. Okay, anybody else wishes to say something? Bandhari, I'm unmuting you. Okay. And anybody else? Just let me know if somebody else has a question, Bandhari. जब तक कोई नहीं पूछ रहा, मैं लिख के रखा हुआ था कि somebody had asked me ठीक है, आप पूछो. कि अब मेरे को ये ट्रेन्स चल जाएंगी, बसेस चल जाएंगी, मेरी मेड, मेरी हेल्थ तो भाग जाएगी. What would I do? उनको इस चीज की इतनी एंजाइटी है कि वो इवन टुडे वो 2 मील्स आराम से बैठ के नहीं खा पानी, ये चली जाएगी. So this is even another withdrawal symptom is कि अब लॉकडाउन खुल गया है तो मैं ऑफिस तो नहीं जाऊंगा, मेरा इन्फेक्शन हो जाएगा. जब मैं घर से बैठ के काम कर रहा हूँ तो पॉसिबल है तो मैं क्यों जाऊं. एंड उस चक्कर में the house people get irritated because there is no me time with the wife, for the wife or for the children. बच्चे भी irritate हो रहे हैं कि नेट नहीं चलता, 6 जने यूज करने के लिए हो गए घर में और वो नहीं चल रहा. अब आपकी जूम मीटिंग है, अब उसकी जूम मीटिंग है, मैं कैसे काम करूं अपना. तो these are few questions that people have generally asked me कि भाई हम पूछेंगे नहीं, आप पूछ लेना हमारे लिए. So let us deal with the maid servant वाला कि वो चली जाएगी. अगर लॉकडाउन खुलेगा, ट्रेनें चलेंगी तो मेरी मेड कह रही है वो घर चली जाएगी. तो ये तो वही हो गई एंजाइटी वाली जो अभी आशिमा ने पूछा था कि वो एंजाइटी बिल्ड कर रही है. अब एंजाइटी यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंस की है ना. वो मेड पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, राइट. बट द थिंग इज दैट हम कितनी बारी हमारे साथ भी होता है, मेड्स का चेंज ओवर होता है, एक मेड चली जाती है, दूसरी के आने में थोड़ा टाइम लग जाता है. बट व्हाट आर वी, मतलब हमारा ट्रेड ऑफ क्या है यहाँ पर. अगर हमारी मेड चली जाएगी तो हम किसी और को इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि रिस्क है, कोविड का रिस्क है. तो वी आर ट्रेडिंग ऑफ लाइफ ओवर हियर. ये थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट है, डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त करना हम सबको करना पड़ेगा बिकॉज देन देयर इज वी आर ट्रेडिंग ऑफ लाइफ ओवर हियर. Even that gentleman who does not want to go to work and he wants to work from home, why does the family want him to go? Because then it's again trading off, it's a risk, he's putting himself at risk. So I think the whole family will have to sit and take a logical conclusion. Just because you want me time, is it logical to ask this man to step out of the house every day and take the risk of encountering the virus, considering ये virus बहुत तेज फैल रहा है. So no, that actually में the family says कि he's gone paranoid कि अगर हम अपने ग्रोसरी लेके भी आए तो अपनी चप्पल हम बाहर उतार के आए तो अंदर घर में घुसे. हाँ. तो मतलब वो इतना ज्यादा पैरानॉइड हो गया था हस्बैंड कि वो घर वालों को जीने नहीं दे रहा. देन मे बी उनके साथ आप बात कर सकते हैं, बट अगर वो लॉजिकली अपनी बात आपको समझा पाए कि मैं चप्पलें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत लोग मैं जानती हूँ कि चप्पल बाहर उतार के ही आ रहे हैं, उन्होंने बाहर की चप्पल, बाहर के कपड़े अलग रखे हुए हैं. बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं. Maybe this man needs to explain to the family. They are calling him paranoid. Maybe he feels they are extra relaxed. तो कहीं पर they are not meeting each other. So they need to talk to each other and understand कि maybe he can explain to them or they can probably explain to them. So Okay. One of them will definitely they have to speak about it logically rather than getting into a unpleasant conversation with each other. क्योंकि इस समय सब लोग घर के अंदर बंद, हम कहीं जा भी नहीं सकते, तो लड़ाइयाँ ना ही करें तो नहीं. जैसे अब लॉकडाउन खुल गया है, आपका मन भी है जाने का. हाँ. आप सोचते हो जाऊं नहीं जाऊं. हाँ. अच्छा मम्मी के ही तो जा रहे हैं, चलो चले जाते हैं. नहीं मम्मी को इन्फेक्शन हो गया हमसे तो. These are few things which are still. जब मैंने टॉक शुरू किया था, मैंने आपको सबसे पहले एक ही चीज बोला था, इस समय आपके इमोशंस आपको बहुत खेल खिलाएंगे, उनको सीरियसली मत लीजिए. इस समय आपके इमोशंस नॉर्मल नहीं है. आप लॉजिकली की जगह आप इमोशनल डिसीजन लीजिए. तो कहीं पर थोड़ा सा सोचिए और अपने आप को इतना चीज बोलिए कि 2 महीने मैक्सिमम 3 महीने इंडिया में ये कर्व नीचे आएगा. देखिए इंडिया की पीक अभी आई नहीं है, ये पीक ऊपर जाके नीचे आएगी. अगर हम 2 महीने इसको बर्दाश्त कर लें तो आगे तो जिंदगी है ना. जान है जहान है. मम्मी के यहाँ चले जाएंगे, मम्मी भी सेफ रहेंगी. Exactly. Well said, Gunjan. I can see a lot of hands coming up, and thank you for all your responses. And I'm sure Vandana दी उनको भी आंसर मिल जाएगा. घर में बैठ के कम्युनिकेशन करनी है.
which is very well said, Gunjan. So Abha ji has a question. She's been raising her hand for a long time. Abha ji, please go ahead. Abha, Hi, Gunjan. Yes. Hi, Abba. It is really, I'm grateful to India Sari Challenge for putting us together. And I never thought I'll meet you professionally like this. But anyway, that's also beautiful. It's not a personal question, but a lot of people around me or families or friends, they have sick people at home, you know, they are caregivers, long time chronic patients हैं. तो एक तो उनसे ही वैसे ही emotions इतने hyper रहते हैं to deal with chronic patients over years and giving care to them with all your emotional invested in that relationship. ऊपर से now with COVID, जो patient हैं वो भी hyper हो गए हैं और जो caregivers हैं वो भी hyper हो गए हैं. So of course it's a lot of adjustment, but any solid tip you can give, you know, how the situation can be dealt with? What do you mean by hyper हो गए हैं patients? They are not listening. Fearful हो गए हैं या हो गए हैं कि भाई ये पानी तुमने उबाल के दिया है कि नहीं, या फिल्टर में से है कि नहीं, या जो मुझे दवाइयाँ दे रहे हो वो have you checked, you know, या जो देने वाला है वो भी, you know, getting irritated कि I'm giving it, या ये fruits available नहीं है, या अभी ये vegetables available नहीं है, तो थोड़ा diet में आपको change करना पड़ेगा, you know. So these are the kind of situations some of the people I know are facing. So how can one counsel them? Well, if somebody is being, you know, paranoid and being, like I said, everybody's emotions are riding very high at the moment. People are not behaving rationally, right? But the caregivers, so okay, now this is a very good time. You know, बहुत सारी चीजें हमें लाइफ में नहीं करी थी कि हमारे पास टाइम नहीं है. और सबसे एक बड़ी बात जो हम लोग बिल्कुल नहीं करते is meditation, introspection, you know, all those things we don't do. So whoever the primary caregiver is, or whoever the, you know, the person of the house is, can probably sit down with herself, calm herself first. So if you're calm yourself, you will have a very calming effect on the person across also. If the other person is getting hyper, you need to take a deep breath. You need to keep your breath in control. Take your breath aram se and talk logically. Tell that person, look, if I keep going out again and again, I can go once in the week or I can go twice in the week, and this is what I can manage, right? This is not a normal situation. Your dawai is coming on time. So you'll have to logically talk it to that person. Then, like I said, options रख दीजिए and let them pick. तो उनको बोलिए कि भाई ये option है मेरे पास, आप बताइए मैं क्या करूं. But at any point of time, you as a caregiver, don't resort to anger and anxiety. Believe me, anger and anxiety are a very heavy price to pay. People who are constantly into anger and anxiety, they are running into a lot of psychosomatic pains, and सबसे पहले जो उनको आता है, that is insulin resistance, means type 2 diabetes. So you have to be very, very careful as a caregiver yourself. कोई भी चीज आपकी खुद की तबीयत खराब करने के लिए वर्थ इट नहीं होती. लोग अपने ऊपर इतना स्ट्रेस ले लेते हैं and then they think, you know, मैंने घर के लिए ये किया वो किया, ultimately खुद बीमार हो गए तो कोई पूछने के लिए नहीं आया. Then what's the point? So like I said, be selfish, self-empathy, self-care, do your best. And when we say to somebody ना do your best का मतलब क्या होता है? उतना जितना आप खुशी से कर सकते हो, खुशी से, you have to be happy. Do your best का ये मतलब ये नहीं होता कि मर के वो चीज करके दिखा दो. No, that's not your best. Do your best till the time you're happy and healthy. Self-health, self-care. Thank you. I hope that answered. Yeah. You know, this is a very complex question and very complex situation. It was very abstract. It was a very abstract question also. So I did not have a particular situation. It was very abstract. So I think I gave an answer also that was abstract. Yeah. Yes, you did. Gunjan, you did a good job with the answer, no doubt. Thank you. And some situations, obviously, because you do not have all the parameters to the question, right? So that's the best we can do. And actually, the caregiver has to be very calm. What Gunjan has said, she's put it very well. The caregiver has to be very calm, very centered within to give that out and accept the person as is. There is no shortcut. But that Absolutely. Okay, Absolutely. I have another question from Anju Goyal. And I'm just unmuting her. Anju Goyal, please go ahead. Anju Goyal. Hello.
हाँ जी हाय अंजू, बोलो अंजू। अच्छा एक सेकेंड, आई थिंक आई अनम्यूटेड। अंजू इज म्यूटेड. हाँ, 1 second, I unmuted her and she by again I'm facing. Okay, अंजू बोलो। अंजू हाँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल हाँ आ रही है. अच्छा, हाय, हेलो, हाय गुंजन, हाय अंजू। अंजू. हाँ, वो थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होती है अभी, जैसे हाँ. मैं सुबह रोज मेडिटेशन भी कर रही हूँ, योगा भी, प्राणायाम वगैरह सब कर रही हूँ। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की रविशंकर जी के फॉलोवर भी हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ा इमोशनल एंजाइटी हो जाती है। तो मेरे को रात में नींद की प्रॉब्लम हो गई, मेरे को बहुत देर तक नींद नहीं आती है। दिन भर तो निकल जाता है फैमिली में और फिर किचन वगैरह में, रात में सोते टाइम फिर मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, फिर बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आती है। इसके लिए आपका क्या है? अच्छा, कोविड से पहले आपको नींद ठीक आती थी? नहीं, मेरे को पहले से थोड़ी प्रॉब्लम, नींद की, इंसोम्निया की प्रॉब्लम तो है मेरे को थोड़ी सी। ओके, तो ये खास कोविड में नहीं है, पहले से ही थी आपको नींद की हाँ प्रॉब्लम? हाँ, पहले से ही थी मेरे को। ओके ओके, तो सबसे पहली बात तो आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया है, मेडिकली हाँ, देखा है मेरे अपने पास आप को? हाँ, Are you taking some? मैं एक मेडिसिन रखती हूँ अपने पास, एंटी स्ट्रेस की, क्लोनोविट वाली है, क्लोनोविट। ओके वो मैं तो रखती आप वो हूँ कभी खाती हैं? कभी। हाँ, वंस इन वाइल, अच्छा, कभी मतलब कभी कभी लेना पड़ता है मेरे को। ओके ओके, तो आपके लिए भी अंजू जी वही रिकमेंडेड है कि अगर आप एंजाइटी ले रही हैं तो आपको अपने आप से ये पूछना पड़ेगा, जब भी आप डिस्टर्ब होती हैं या आपको रात को नींद नहीं आती है, अपने आप से ये पूछिए कि इससे पहले मैं क्या सोच रही थी। ये बहुत अच्छी थ्योरी है। 2 मिनट पहले कौन सा थॉट था मेरे दिमाग में, इस समय क्या चल रहा था, उस थॉट के ऊपर जाइए और ये सोचिए कि इसकी जगह पे क्या मैं कुछ और सोच सकती हूँ। एक तो वो है अपना थॉट करेक्शन, खुद को करना सीखना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि हम लोग बार बार नेगेटिव थॉट्स को, हमारी एफिनिटी, हम चिपक जाते हैं नेगेटिव थॉट्स में। एक्चुअली में बस वो दिल हमारा भरा रहता है और हम बिल्कुल बस दुनिया से हमारे साथ ही हो गया सब कुछ। तो वी हैव लॉट ऑफ एफिनिटी टुवर्ड्स नेगेटिव थॉट्स। ऐसे नहीं कि हमारे साथ पॉजिटिव चीजें नहीं हुई है लाइफ में, लेकिन उनको हम लोग पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर देंगे, ग्रांटेड हाँ, ले भूल लेंगे, जाते हैं लेकिन उसको। हाँ, नेगेटिव चीज को हम छोड़ते नहीं है। सो ये चीज हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसका भुगताना हम कर रहे हैं। जैसे आप नींद से कर रही हैं, कोई किसी और तरीके से कर रहा है, किसी को कहीं दर्द हो रहा है, तो उसकी कीमत तो आप ही को चुकानी है नेगेटिव थॉट्स की। दूसरा, शायद बॉडी को थकाना जरूरी है, फिजिकली एक्सर्ट करना, so that your body is tired. Maybe you can read something, एक रीडिंग एक ऐसी चीज है जिससे नींद बहुत जल्दी आती है। So the minute you concentrate, the outcome is sleep. जब भी आप किसी चीज पे फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, और क्योंकि ब्रेन जब थकेगा तो नींद आएगी। सबसे ज्यादा एनर्जी आप हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है। अगर हम उसको यूज करेंगे, लेकिन उसको हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स में घूमते रहेंगे, तो ब्रेन को वो चीज करनी आती है। जो चीज हमारे ब्रेन को करनी आती है उसमें वो थकता नहीं है। आप उसको कुछ नया कराइए, वो कराइए जो उसने पहले कभी नहीं किया। कोई नई चीज सीखिए, कोई नई किताब पढ़िए, समथिंग जो आपके ब्रेन ने पहले कर तो थके। बॉडी को थकाइए, ब्रेन को थकाइए। और तीसरी चीज, अगर रात को नींद नहीं आती है तो नींद को बोल, मेरे को तेरी परवाह भी नहीं है, मैं उठ के कुछ किताब पढ़ लेती हूँ, नींद अपने आप झक मार के आ ही जाएगी। राइट। नींद नहीं आ रही, sit and read something. I will sit and read something, ठीक है। I'll sit and listen to a nice talk. आजकल इतने बढ़िया ऑडियो बुक्स हैं, कोई ऑडियो बुक लगा के कोई आपको कहानी सुना रहा है, वही सुनते रहिए, देखिए नींद आ जाएगी। So these are the 3 options you have. Okay, thank you. Thank you, Anju, for your question. Thank you. And anybody else? Vandadi, can you spot anybody? I think it's Anila Khandelwal. Does she have a question? Anila? Yeah, she's raising a finger for a long now. Okay, 1 second. I have to track where she is. Can't spot her. Is she with her own name or some other name? Yeah, She's Anila iPhone. Khandelwal. iPhone. got it. Yeah. And Anila. Anila di, go ahead. हाँ, हेलो। हाँ, गुंजन जी। Hi Anila. हाय। एक्चुअल में क्या है, मेरे 2 बेटे हैं और एक बहू है और मेरा एक ग्रैंडसन है। एक्चुअली वो लोग अपने तरीके से जीना चाहते हैं। मैं अपनी लाइफ में शुरू से बड़े उससे जी हूँ, मतलब अच्छी तरह, मतलब
हर तरीके से करीने से सब वो रखना। तो मैं अपने छोटे बेटे, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, मैं उससे बोलती हूँ कि तुम अब फ्री हो गए हो तो 10 मिनट सर्वेंट से सफाई करवा लो। तो वो कहता है आपने मेरी स्पेस में आकर मुझे डिस्टर्ब किया, मैं इस समय कुछ और सोच रहा था। तो हर बार मतलब वो लोग मुझे मतलब चाहते हैं कि मैं खुश, वो ये तो चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, अपने माइंड को कहीं और लगाऊं, अच्छी चीजों में लगाऊं, लेकिन उनकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करूं। तो और पूरा घर मुझे मैनेज करना पड़ता है। वो लोग बिल्कुल भी 1 मिनट भी मेरे काम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कुछ नहीं काम करते हैं, मतलब अपना अपना काम करते हैं जो उनका है, बाकी सर्वेंट करेगा या मैं करूंगी। सारी जैसे आजकल कोविड है तो सब्जियां आती है उनको धोना करना, फिर सबको सुखाना रखना, सब चीजों को मंगा के कहाँ कहाँ रखना है, ये सब उनको कुछ पता ही नहीं है। और रोज क्या रेसिपी कहते यही सब्जी बनानी, ये बन गया, तो रोज नई नई रेसिपी चेंज करके मैं खुद बना रही हूँ, सर्वेंट के साथ मिलकर सब कुछ कर रही हूँ। पर बच्चे बिल्कुल भी मतलब बड़े हैं, 30 ईयर्स का एक और बड़ा वाला 33 का है, और बहू भी है, लेकिन वो भी नहीं सुनना चाहती, वो भी अपने में ही रहती है। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं तो आपको ये जेन्युइन मतलब डिफिकल्टी आ रही है, या आप बस चाहती हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, या आपको जेन्युइनली आपको जेन्युइनली लग रहा है आप थक रही हैं ये सब करके, काम बहुत ज्यादा है, या आपको लग रहा है कि उनको रीजनेबली पार्टिसिपेट करना चाहिए घर में, वो आपकी नीड है? नहीं, मैं थक नहीं रही हूँ, आप थक नहीं रहे हो? मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा मेरा रिस्पेक्ट करें कि मम्मी में हमारा इतना कर रही है, तो थोड़ा सा हाथ बटा दें। She wants them to participate to finish the work, get the work done. और मेरे बच्चे जैसे छोटा लड़का है, बड़ा लड़का है, अब इस कोविड में तो बोल ही सकते हैं ना कि तुम थोड़ा नौकर फ्री हुआ है, चलो सफाई करा लो अपने रूम की, बच्चा छोटा है, डिटॉल से डस्टिंग कराते हैं हम लोग। तो वो लोग मुझे कहते हैं आप हमारी स्पेस में दखल करते हो। उनको इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मुझे मतलब समझ में नहीं आता। वो कहते हैं पुराने जमाने की बात है जब माँ बाप इंटरफेरेंस करते थे। अब मैं क्या करूं? मैं चुपचाप रहती हूँ अपने रूम में, अपने YouTube देखती रहती हूँ, ये सब अपना काम वाम करके अपने में रहना शुरू कर दिया। तो एक तो आपको अपने में रहने में, अपने काम से काम रखने में आपको प्रॉब्लम है? नहीं, मैं खुश हूँ। आप खुश है ना? तो फिर आपको दिक्कत क्या आ रही है? Basically she says कि उसके बच्चे they don't participate in getting the work executed, and if she tells them कि ये तुम अपना कमरा भी साफ करा लो, they feel कि she is interfering, not giving them space. Right. So there are two things over here. She's saying that वो थक नहीं रही हैं. It's not overwhelming. Work is not overwhelming for her. She just wants them to participate and take equal responsibility of the house. Right? Yeah. तो आप क्या कर सकती हैं अंजू जी? आप अनिला जी, आपके हस्बैंड भी आपके साथ? अच्छा, हस्बैंड इज नॉट देयर। ओके, तो क्या आप पूरी एक फैमिली डिस्कशन कर सकती हैं, सबको बुला के और सारे घर के काम सेग्रीगेट करके, एंड पूरे लाइक एक पेपर पे सारे काम रख के उनको बता सकती हैं कि ये सारे काम हैं और हम सबको कैन वी डिस्ट्रीब्यूट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं थोड़ा सा अब परेशान हो गई हूँ ये सब कर करके। क्या आप ये सब उनको बोल पाएंगी? नहीं, वो नहीं करते हैं, बैठते ही नहीं है साथ में। मैंने बहुत बार एक जना कोशिश करता है तो दूसरा जना नहीं चाहता है, ये दूसरा जना चाहता है तो तीसरा जना नहीं चाहता है, तो मैंने छोड़ दिया उन लोगों को उनके ऊपर। अब बहू को मैंने समझाया कि तुम अपने रूम की सफाई करा लो, तुम्हारा छोटा बच्चा है उसको होगा। छोटे बेटे को तो मैं कुछ कहती नहीं हूँ क्योंकि वो तो बहुत गुस्सैल है और गुस्से में आ जाता है, कहता है कि मेरी स्पेस में आपने डिस्टर्ब किया मुझे। ठीक है। और वो दुबई जा रहा है, मुझे उस बात की भी टेंशन है क्योंकि उसको दुबई में जॉब लग गई है। और दूसरी बात यह है कि वहां पे कोविड का भी है तो अकेला रहेगा तो कैसे अपना ध्यान रखेगा, सब कुछ ये सब बातें हैं। मतलब बच्चे बिल्कुल भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो होना चाहिए ना, थोड़ा मम्मी बोल सकती है ना, माँ हूँ मैं उनके, और मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ
तो मुझसे कहते हैं इतनी पूजा पाठ आप किसके लिए करती हो? तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए करती हूँ मैं। आप उनके लिए पूजा पाठ करती हैं? मतलब अपने घर के लिए, अच्छे वाइब्रेशंस के लिए। I'm interrupting here, but may I Yeah. suggest, because I can see lots of hands. Anila, maybe we can do a one-to-one session later. Yeah, I think so. Yeah, it's a little lengthy. Yeah. Absolutely. Because she has a personal problem, not just COVID related. Because what I understand, she's going through like children not taking responsibility and they've taken her for granted. Yeah, so, but they are not children, na? They are grown adults. Matlab for her they are children. All right, so, I'm intervening, but I can see lots of hands, Gunjan, and I'm going to put Renu ji on. She had a question to ask. Renu ji, आपको क्वेश्चन पूछना था ना? हाँ, आप सुन पा रहे हो? हाँ रेनू जी। गुंजन, जो मेरे को जवाब ना, सब तुम्हारे सारे जवाबों से मेरा जवाब मिल गया। अच्छा। तो कोई बहुत मेजर नहीं था, पर ये छोटी सी चीज थी। जैसे जो आशिमा ने बोला, आई ओन ए गारमेंट फैक्ट्री, तो वो मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हम दोनों तो मिलके ही काम करते हैं। मेरी अपनी प्रॉब्लम थी कि फैक्ट्री को मैं अब सितंबर से पहले नहीं खोल पाऊंगी क्योंकि हमारा सारा एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट इससे पहले ऑर्डर होगा ही नहीं, तो कैसे होगा? लेकिन मैं तुम्हारा समझ गई। ओके, एनीबॉडी एल्स? फाइनेंशियल को है, लेकिन ऐसी थी कैसे, तो तुम्हारा जवाब समझ गई हूँ सारा। चलिए, दैट इज सो नाइस। मतलब गुंजन का सेशन इतना पावरफुल है गुंजन कि बहुत सारे लोग एक ही से समझ गए, है ना गुंजन? Just trying to track where people, Gunjan, what basically queries have been coming to me as well. Yeah, I can see Nutan's hand. Nutan ji, 1 second. Queries have been coming to me also that because there's so much of fear and anxiety in everybody, and they're looking at the entire world with those eyes. हमारे ही घर में 10 लोग हैं एंड हर एक का नजरिया अलग अलग है। हर एक जना, जो कुछ लोग इतने फियर में हैं और वो फियर और बढ़ता चला जा रहा है because of this negative news, और कुछ लोग हंसते हैं, so they're such diametrically opposite, and to coexist in that situation, that is the test, that is the key. नूतन जी, हाँ जी नूतन, आप नमस्कार। मेरे साथ भी वही सेम प्रॉब्लम, मतलब वो थी कि इतने सारे क्वेश्चंस थे जब सेशन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे सबके आंसर्स मिल गए। That's good. That's good. एक्सप्लेन किया इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू। के लिए मैंने हैंड रेज किया था। बेसिकली सबका कोविड रिलेटेड एंजाइटी का ही क्वेश्चन है। और एक बार ही आपने समझा दिया कि एंजाइटी को आप कैसे टैकल करो, तो वो किसी भी तरह, किसी भी वजह से एंजाइटी हो रही है तो यू अंडरस्टैंड। हाँ, और जो हमें बचपन में सिखाया गया था कि इमोशन नहीं दिखाना है, ये अब अपने बच्चों को हम सिखाना शुरू करें कि अगर रोने का मन कर रहा है तो रो। अच्छे बच्चे रोते नहीं, ऐसे नहीं कहना है बच्चों को। वी हैव टू एक्सप्रेस अप्रोप्रिएटली। यू नो व्हाट, जब हमें फिजिकल चोट लगती है, हम अपने आप को बैंडेड लगाते हैं, अपने आप को डेटॉल लगाते हैं, अपने आप को डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं, उसको हम अंदर रखना सीख गए। पता नहीं कब सीख गए, कैसे सीख गए, उसको अंदर दबाना हमने सीख लिया बहुत जल्दी। विद द रिजल्ट वो अब हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम इतनी ओवरवेल्म क्यों फील कर रहे हैं। लाइक अनिला जी, एक्चुअली इट्स नॉट व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अनिला जी के साथ इट्स अ वेरी पास्ट का थिंग जो शी इज बीन कैरिंग एंड नाउ शी इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। और वो बच्चे कह रहे हैं डोंट इंटरफियर। अब बच्चों को जो इंटरफियरेंस लग रहा है फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट इंटरफियरेंस। आई एम द मॉम, आई एम सपोज्ड टू बी डूइंग दिस। I'm concerned. I'm concerned, yeah. So, wo concerned is looking like interference. So that is something we have not learned an appropriate way of communication, of emotion. So your next session could be of communication skills, you know, which is very essential. Communication skills, so that everybody can communicate with the husband. You might have been married for 30 years, 40 years. Absolutely. But still there is not a absolutely. So absolutely. And you communicate with your body, you communicate with your expressions, you communicate by the way you are even giving the person a chammach. There is a communication happening, non-verbal communication. You know, lots of time people say nice things to you, but you know what, she didn't mean good. क्योंकि आपको, because she's communicating,
तो ओवर द इयर्स हमने हमारे माइंड को झूठ बोलना सिखा दिया, अपनी बॉडी को झूठ बोलना नहीं सिखाया हमने, और सिखा भी नहीं सकते अपन, हम सिखा भी नहीं सकते। एंड मेजर हस्बैंड वाइफ के झगड़े ही इसलिए होते हैं क्योंकि दे आर नॉन कम्युनिकेटिव, दे डोंट टॉक। हस्बैंड वाइफ तो इट्स कांस्टेंट चेंजिंग द अदर पर्सन, not acceptance. More hand going up. Acceptance is a problem. And मीना थिरानी, मीना आपको क्वेश्चन पूछना है? हाँ जी मीना, हाँ बोलो। या गुंजन, हेलो। या हाय मीना। एक क्वेश्चन तो मेरा जो सर्जना का था वो था, लेकिन उसका जवाब मिल गया। मेरे भी बच्चे बाहर रहते हैं तो मुझे भी रात भर नींद नहीं आती थी। दूसरा, how can we remain productive during this lockdown and after the that is something that is really concerning people कि you know ये 4-6 महीने whatever निकल जाएगा, उसके बाद मतलब you know हमेशा कहते हैं टाइम नहीं है, अब एक्चुअली वो टाइम हमारे हाथों में आया है। सो मीना जी, इफ वी ऑल कैन you know वो सारी चीजें जो हमने कभी नहीं करी लाइफ में, ट्रस्ट मी, दिस इज द टाइम यू कैन डू इट। यू कैन acquire a new skill, you can learn something new, you know कितनों को कंप्यूटर से फोबिया है, कितनों को कैसे एप्स कैसे यूज करनी है उससे फोबिया है। वैसे टाइम नहीं मिलता, अब हम 1 घंटा निकाल के या कुछ टाइम निकाल के हम ये सारी चीजें सीख सकते हैं। सो दैट इज वेरी गुड। एंड किनसे बात हो रही थी अभी जिनको नींद नहीं आ रही थी? सो इफ यू, आशिमा जी, हाँ, so if you actually put your brain to some kind of challenging work, you will just realize that this COVID did something good to you. Yeah, so acquiring a good skill, वैक्सीन करनी नहीं आती थी वो सीख गए हम लोग। बहुत चीजें सिखा दिया कोविड ने। आई थिंक सुधा ने गाना भी डाला था अपना, बड़ा दुख दीना, समथिंग वेरी नाइस शी मेड, कि कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया। वेरी वेल सेड। मीना, कुछ और पूछना है आपको या आपका क्वेश्चन हो गया? हो गया, ठीक है। Basically, women who have not been scheduling themselves, Gunjan, once you make a schedule and once you make a timeline for yourself for your day, and that's the only way to be productive. And as you very rightly said, कि अपने आप को upskill करो, जो आप करना चाहते थे वो सब करो, but करना किसको पड़ेगा? आपको करो तो सही। That's the whole thing, you know. And so absolutely. We've been doing this only transformation session, so we have just 4 minutes now. Anybody has a last question? We will wind up exactly at 5. किसी और को कुछ पूछना है? The floor is open for questions. Anybody? पूनम जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? पूनम जी, कुछ पूछना है आपको? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन में मेरा पीरियड बहुत अच्छा बीत रहा है, क्योंकि मेरी ट्विंस पोतियां हैं जो कि 6 साल की हैं। वो दिन भर मेरे साथ खेलती हैं और मैं इनको एंजॉय करती हूँ। कभी कहती है मेरे साथ डांस करो, कभी कहती है ताश खेलो, कभी कहती है मेरी बारबी डॉल की ड्रेस बनाओ, और मेरी बहू दिन भर नए नए खाने बना के खिला रही है, तो मेरे को मेरा लॉकडाउन पता ही नहीं चल रहा है। That's going to have withdrawal symptoms later on, Poonam ji. I know. When the kids start लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मजा हो गया है जिनके पास पेट्स हैं, डॉग्स हैं, और जिनके पास छोटे बच्चे हैं, उनके बड़े मजे हो गए। सब घर में हैं, सब माहौल बहुत ही बढ़िया चल रहा है उनके लिए तो। Absolutely, Gunjan, very well said. And I think that we can wind up in another 2 minutes because Devditi are known for punctuality. And I will share that I have a 6-month-old in my house, and she is loving it, and the entire family is loving it. Because of her, our days are going joyfully. And because of Devditi transformation series, which we've been doing, iska ek session ab kal bhi hai. So what we have planned is Mondays and Wednesdays we're going to have guest speakers or from the Devditis, and Thursdays are going to be Thursdays with me. And Gunjan, I invite you also to join in if you can. When is this? Sorry, when is this? I'll just tell you, I've had a background of Vedas, Upanishad and Bhagavad Gita for the last 27 years. And the session is tomorrow at 4. So Thursdays with Sapna. Basically, we started this series by doing that only, by trying to alleviate the anxieties and fear, all these, you know. So that's how it has come about in this Swaroop. And we thank everybody. Bandadi, you used to say something? You have 2 minutes. मैं तो थैंक्स बोलूंगी गुंजन को, एंड आई थिंक वी नीड अनदर सेशन, एंड स्पेशली इन अ स्किल, हाउ टू टेम द फैमिली, हाउ टू exactly tame the children and the husband to get the work done. वो बहुत जरूरी क्वेश्चन है। जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करते रहते हैं, हम बोलते नहीं।
तो हमें जो कम्युनिकेशन है हमें किस तरह से करना चाहिए, वी ऑल नीड टू लर्न कि क्या पोलाइट वे, किस तरह से हमें कम्युनिकेट करें कि बच्चे सुने, हस्बैंड सुने, घर वाले सुने। और जो आजकल इसके ऊपर इसके ऊपर मुझे एक जोक याद आया। So there was this lady, सुबह से लेके रात तक खपती रहती थी, you know, सारा घर का काम करती थी। US का जोक है ये, तो वहां तो सारा काम खुद करना पड़ता है। तो सबको बोलती थी, कोई सुनता नहीं था। एक दिन उसने कुछ नहीं किया। हस्बैंड ऑफिस से आया, पहले आते पैर खिलौने पे गिर गया, फिर यहाँ पे पिज्जा पड़ी हुई थी, सारा घर गंदा, और उसको लगा क्या हो गया मेरी वाइफ को आज, मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद हर, मतलब कुछ तो हो गया मेरी वाइफ को। वो भागा 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 बेडरूम में गया दौड़ते हुए, वो लेट के टीवी देख रही थी। तो कहता व्हाट हैपेंड, कहती है आई डिडंट डू इट टुडे, आई डिडंट डू इट। मैंने नहीं किया। जो करना है, I'll make a drink for myself. I don't care. Gunjan, one question. I can see Ritu Arora, and after that we'll wind up. Ritu Arora, I'm unmuting you. Ritu Arora. Ritu Arora. I lost her. Yeah, Ritu Arora. Yeah. Ma'am, I just want to ask this question: how to decrease the screen time of teenagers in this COVID? We are facing a lot of challenge. They are not addicted to the screen time, you know. गुंजन को अनम्यूट करो भाभी। गुंजन म्यूटेड हो गई। Okay, before I'm unmuting her, but you have to be a role model yourself to make your children follow. Gunjan, did you hear? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Now, children, what is the age of these children? 16 and 18. 16 okay. years. 16-year-old is school going? Yeah, class 12. How many hours is he spending on the screen? Ma'am, because of this online education, we really don't know. So obviously it's like 4 hours of education is, after that they are spending like good time on it. And we don't know actually whether it's like, you know, they always say we are working, but we are not able to get Okay, now this is becoming very tricky in COVID because everybody is depending on the gadget to feel centered and feel emotionally secured right now, right? This is one thing that is happening in COVID. Now, what you need to ask yourself, is he neglecting his work? Is he neglecting his sleep? And yet getting attached to the screen, that is something you need to ask yourself. Then it's a concern कि अगर वो सो नहीं रहा है ठीक से और वो सुबह देर तक, रात को देर तक जग रहा है, सुबह देर से उठ रहा है, then it is a problem. Then we need to address that. But if he is ready to give up his phone by 9 o'clock, by 10 o'clock, and he's sleeping a good 8-hour sleep, you probably can be okay with it. And he's doing his work. So if he's doing his work and he's sleeping, then you kind of can let this go right now. Okay, ma'am, sleeping is not a problem. So I have made a rule. So they have to give their phone by 11. And but I want we to learn a new skill, which they don't want because they are saying we are already having so many things. Yeah. Then you know what? Just think, अगर वो अपना काम कर रहा है और अगर वो स्क्रीन आपको रात को दे रहा है, then हैप्पीनेस को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दीजिए आजकल। इस समय हैप्पीनेस बहुत जरूरी है सबके लिए। लेकिन अगर बच्चा काम नहीं कर रहा है, अपना होमवर्क निग्लेक्ट कर रहा है और सो नहीं रहा, सबसे ज्यादा नींद, children are not sleeping. I'm getting kids who are sleeping at 4 and 5 in the morning. So that is where you need to be concerned. Then definitely, if that's not happening, then you know happiness quotient hai. But maybe at some time tell them, you know what, when lockdown finishes, then we will be changing this. Right now, I'm letting it happen. So with this question, we come to the end of our session. And thank you, Ritu, for your valuable question. And I'm sure it's added value to everybody. Gunjan, we thank you again. Vanna Didi, me, thank you, and entire Devditi. Thank you for this valuable session, and we hope to connect with you soon. Bye for now. Bye, everybody. I'm ending the Bye. Thank you, Gunjan. Thanks a lot. Thank you. Bye, Vanna. Bye. Bye.